Hello dear children, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today in this video we are going to do the second part of the chapter water, and in this part we will be doing the solutions. What are solutions? Solution is the homogeneous mixture of different components of two or more than two components. It's a homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more components. Fine. What are those components? The components are the solute and the solvent. Fine. The solute and the solvent, they together form the solution. Now this solution, these are the components of the solution. They can be two or more than two components. Fine. If there are two components, that solution is known as binary solution. Fine. अगर दो से ज़्यादा है, if there are three, then that is known as ternary solution. If there are four, then it is quaternary. Okay. But here in this video, we will be dealing with the binary solution, that is two components. Fine. Binary solutions made up of two components, one solute and one solvent. Now solute क्या है, solvent क्या है? Out of solute and solvent, solvent वो medium है जिसमें चीज़ें dissolve होने वाली हैं, and जो चीज़ dissolve होने वाली है वो होता है solute. Fine. Solute क्या है? The component which is going to dissolve in the solvent, and solvent which will allow the dissolution of the solute in it. Okay. So in this video we are going to deal with one solute and one solvent. Fine. Let us look at the example. Suppose salt, very simple example. Fine. Salt plus water. Salt plus water. What solution will it make? Saline solution. Okay. It will make a saline solution. Now this is the solution, homogeneous solution, homogeneous mixture of these two components. It's a binary, it's an example of binary solution. One solute and one solvent. इसमें एक solute है and एक solvent है. Now कैसे पता चलेगा कि कौन सा component solute है and कौन सा component solvent है? It's very simple. अगर solute and solvent दोनों different phase में है, phase means दोनों state of matter different है, like here salt is solid है ना, and water is in liquid state. So इस case में जहाँ solute and solvent का phase same ना हो, different हो, तो we'll look into the phase of the solution कि solution किस state में है. Now saline solution यानी salt plus water का जो solution है वो किस state में होगा? Solid होगा या liquid होगा? Out of the two components, one is in solid phase, one is in the liquid state. Fine. तो solution किस state में होगा? Solid या liquid? Here we can see saline solution is the liquid state. तो solution जिस state में होगा ना बेटा, उस phase का जो component होगा ना, वो component होगा solvent. तो यहाँ पे solvent है water, because ये liquid state है and water liquid state है. Fine. So water is the solvent here. ये तो बहुत simple example है, but in other examples जो थोड़े से complicated होते हैं, whereby it is difficult to find out or to understand कि which component is the solute and which component is the solvent. So for that, if these two components are in different state, just look at the state of the solution. जिस component का phase state solution वाला हुआ, वो component होगा solvent and the other one is the solute. Okay. So here these two components form the liquid solution. Fine. Now if suppose दोनों ही component का जो phase है, जो state है वो same हुआ, suppose solid solid हुआ. Okay. तो solid solid अगर दोनों हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा out of those two वो जो solids, अगर solid solid components हैं तो solution भी solid solution होगा. Okay. The solution will be the solid solution.
तो सॉलिड सॉलिड अगर दोनों हैं कंपोनेंट्स, तो उन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट सोल्यूट है, कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है. फॉर दैट वी नीड टू सी कि कौन सा कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, यानी ज़्यादा कौन सा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो है सॉल्वेंट, एंड जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है वो है सोल्यूट. फाइन. Now there can be many, like here we saw solid solid. हम एक एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. Now the solution may be a liquid liquid solution. Liquid liquid solution means liquid plus liquid. What does this mean? कि solute भी liquid state का है and solvent भी liquid state का है. Example say water plus milk plus alcohol, anything. Okay. Second, it may be liquid plus solid. Just now we saw one saline water where the mixture was solution was made up of salt and water. We can have sugar solution also. Sugar solution means water plus sugar. So one is liquid and the other one is solid. We can have liquid plus gas also. Okay, liquid plus gas example is soda water, right? We can also have, we just now saw, we can also have solid solution whereby both the components are in the solid state. What can be the example? The example is alloys, right? Metal alloys, metal whereby two different metals, two or more different metals are combined. वो combine करते हैं, एक solid एक solute और एक solvent की तरह combine करते हैं और एक कुछ अलग metal बनता है. That is an alloy. जैसे गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए, गोल्ड तो ऑफ कोर्स है ही, तो ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड है. जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड कि अगर सेम फेज़ है, अगर सेम लाइक सॉलिड सॉलिड सेम फेज़ हुआ, तो अगर सेम फेज़ है तो कौन सा होगा सॉल्वेंट, जो एक्सेस क्वांटिटी में हुआ, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी. इफ़ वी गो फॉर द गोल्ड ज्वेलरी, तो गोल्ड ज्वेलरी में ऑब्वियसली गोल्ड ज़्यादा होगा, बट वो ज्वेलरी बनाने के लिए इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद लिटिल अमाउंट ऑफ इधर कॉपर और सिल्वर. ओके, सो इन दैट केस कॉपर और सिल्वर की क्वांटिटी कम है, तो वो क्या बन जाते हैं, सोल्यूट इन दैट केस, एंड गोल्ड इज ऑफ कोर्स सॉल्वेंट. वन मोर एग्जाम्पल कैन बी ब्रास. Brass is also an alloy. It is made up of copper and zinc. अब कॉपर और जिंक में क्या सॉल्यूट है एंड क्या सॉल्वेंट है. विल लुक इनटू द परसेंटेज कि कितना परसेंट कॉपर है एंड कितना परसेंट जिंक कंबाइन हुआ है टू फॉर्म दिस सॉलिड सोल्यूशन, दैट इज अ मेटल एलॉय ब्रास. Copper is mixed in 70% and zinc is just 30%. So now can you say कौन सा solvent है? Of course this is the solvent. Copper is the solvent and zinc is the solute in this case because this is present in excess. And these two together, the solvent and the solute, ये मिलकर बनाते हैं metal alloy brass solid solution. Okay, now many a times solution के लिए we often use the term true solution, or solution is also known as the true solution. What is the true solution? Solution, it is a homogeneous solution. The solution in which the solute and the solvent वो इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए कि माइक्रोस्कोप के अंडर भी solute solvent से अलग ना दिखे, है ना. जैसे शुगर सोल्यूशन है, अगर आप माइक्रोस्कोप में भी इसे देखते हो तो आप शुगर पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट से यानी वाटर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो दिस इज अ ट्रू सोल्यूशन. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट present in the solvent, the solution can be a dilute solution, it can be a concentrated solution. Fine, dilute or concentrated, तो you must have heard many a times. Concentrated, it can be a concentrated solution. ये किस पे डिपेंड करता है? फाइन, इट्स फाइन कि सोल्यूट कम होगा सॉल्वेंट से, जो कंपोनेंट कम होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा. फाइन, बट स्टिल
वो सोल्यूट की क्वांटिटी भी कितनी है उस सॉल्वेंट में, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो पूरा सोल्यूशन ईदर एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है या वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो सकता है या इट कैन बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. Saturated solution. It can even be a supersaturated solution. Okay. Supersaturated. ये दो टर्म्स मे बी न्यू हो आप लोगों के लिए, मे बी. लेट्स सी वन बाय वन. दिस इज़ वेरी सिंपल डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट बहुत ही कम हो, बहुत ही कम. फाइन, बहुत कम. से फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम हो एंड उसमें सोल्यूट से 5 ग्राम हो तो दिस इज़ अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपैरेटिवली सोल्यूट से काफ़ी ज़्यादा है. फाइन. ना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स लाइक डाइल्यूट में हमने देखा कि सोल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम है ना, रिलेटिवली it's very less, but in concentrated solution the mass of solute is relatively higher. Okay, obviously less than the solvent, लेकिन comparatively अगर dilute से compare करें तो इसमें solute की quantity काफ़ी ज़्यादा रहती है. But coming to saturated solution, if we see the saturated solution here at a particular temperature, से room temperature, अगर हम room temperature पे देखें तो किसी भी solvent में हमने पहले start किया solute डालना, पहले वो dilute था और बहुत ज़्यादा डाल दिया तो एक स्टेज आया जब वी सॉ कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सोल्यूट है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड बना, लेकिन अभी भी उसमें इट विल अलाउ है ना डिसोल्यूशन, अभी भी होगा उसमें डिज़ोल्व होगा कंपोनेंट, अभी वो स्टेज है कॉन्सेंट्रेटेड. बट अगर हम उसमें और सोल्यूट डालते जाएं, डिज़ोल्व करते जाएं, ठीक है, तो अ स्टेज विल कम व्हेन एट दैट सेम पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा कि सॉल्वेंट विल नॉट अलाउ any more solute to get dissolved in it. Okay, a phase will come, a stage will come. That phase or that stage where the solvent will not allow any more solute to dissolve in it at that particular temperature. This is very important, at that particular temperature. Okay, why am I saying this is important? Because when you change the temperature, अगर आप temperature बढ़ा देते हो तो फिर क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्वेंट में और स्पेस आ जाएगी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, तब इट विल नो मोर बी इन दैट केस इट विल नो मोर बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. फाइन. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन कब होता है? एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, से रूम टेम्परेचर, जब वी कीप ऑन एडिंग सोल्यूट टू द सॉल्वेंट लेकिन सॉल्वेंट डज नॉट डिसॉल्व any more solute in it. That phase at that particular temperature is called the saturated solution. For example, if you take 100 gram water, suppose 100 gram water, in that you start adding niter. Okay, what is niter? It is KNO3. Okay, you start adding this. Now suppose you add 1 gram niter. Okay, so it will be a dilute solution, and then you go on, keep on adding. A stage will come where you will see कि the solution has become concentrated. Every time जब भी आप नाइटर ऐड करो the same amount of water में, okay, the same amount of water में रूम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे आप नाइटर ऐड करते जाओ, ग्राम बाय ग्राम आप उसका मास बढ़ाते जाओ सोल्यूट का, कीपिंग द सॉल्वेंट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर कांस्टेंट. फाइन. सो एंड जब भी आप उसमें ऐड करो यू जस्ट स्टर इट. फाइन. प्रॉपरली गिव अ स्टर टू द मिक्सचर, टू द सोल्यूशन. अ स्टेज विल कम व्हेन यू विल सी get to see the concentrated form of the solution. But after at a certain point, after some time, you will see the saturated form of the solution, whereby आप उसको कितनी भी देर तक solution को आप you leave the solution or you keep on stirring vigorously, even vigorously if you stir the solution, what will you see? You will see that no more niter is being dissolved, no more KNO3 is being dissolved in the water at that particular temperature. Fine. That point, at that stage, you say that the solution is saturated with niter. जितना amount niter उसमें लगा, जितना ग्राम KNO3 dissolve हुआ and saturated solution बनाना, उतना ग्राम KNO3 say now the solution is saturated.
इसको अनसैचुरेटेड कैसे कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड मीन्स कि द सोल्यूशन इन विच more solute can be dissolved, that is unsaturated. Like this is unsaturated, this is unsaturated, okay. जिसमें अभी और place है, अभी और solute solvent में add हो सकता है, that is the unsaturated solution. तो saturated को unsaturated कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? By adding more solvent to it या by changing the temperature. अगर आप इसका temperature change करते हो, अगर आप temperature increase कर देते हो, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे सैचुरेटेड से वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आप उसमें और ज़्यादा, इट विल अलाउ सम मोर सोल्यूट टू गेट डिजॉल्व्ड इन इट. फाइन, ईदर यू कैन गो विद दैट, या अगर आपको अनसैचुरेटेड बनाना है सैचुरेटेड को, देन यू कैन ऐड द सॉल्वेंट इनटू इट, तभी भी वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा. टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा. बट अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, फाइन, अगर इसमें हम कूलिंग इफेक्ट देखें, कूलिंग इफेक्ट ऑन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसका कूलिंग इफेक्ट क्या होगा? एज सच तो अगर आप टेम्परेचर लोअर करते हो, है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज़ लोअर्ड, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना. सॉल्यूट जिस रेट में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है वो कम हो जाती है अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो. तो अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन में तो इटसेल्फ देयर इज़ नो मोर प्लेस फॉर द सोल्यूट, no more solute can get dissolved in the solvent. जितना होना था वो हो चुका, that is the last point. Saturated हो चुका है solution. अगर इस saturated solution को बेटा एक particular temperature पे ये saturate हुआ, अब इस temperature को हम थोड़ा lower कर देते हैं, कम कर देते हैं. जिस भी temperature पे ये saturate हुआ उसे अगर हम lower कर दें, तो क्या होगा? कुछ extra जो solute है जो इससे कम temperature में उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता, वो सोल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. वी विल बी डूइंग द क्रिस्टल पार्ट लेटर, थोड़ी देर बाद. पहले इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फाइन. उस टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट ऐड हो सकता था हो गया, और नहीं हो सकता. अगर हम उसे टेम्परेचर लोअर कर दें, इस टेम्परेचर जिस पे सैचुरेटेड हुआ उसे लोअर कर दें, तो एज सच लोअर्ड टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं होती. अब ये सैचुरेटेड का भी टेम्परेचर अगर हमने लोअर कर दिया तो काफ़ी सारा, या कुछ अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन, उसमें कौन से कंपोनेंट्स है वो डिपेंड करता है, कुछ कंपोनेंट यानी कुछ सोल्यूट वो उस सोल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. एंड रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन अगेन वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. नाउ उसका टेम्परेचर क्या होगा? एट द लोअर टेम्परेचर, है ना. अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर नहीं रहा, अब वो टेम्परेचर लोअर हो गया है. तो उस लोअर टेम्परेचर पे बाकी का सोल्यूशन, क्रिस्टल निकलने के बाद का बाकी का सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा, एंड कुछ सोल्यूट क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. ये क्रिस्टल क्या है, कैसे इट कम्स आउट, कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं इस रिएक्शन, कुछ भी क्रिस्टल में जो सोल्यूट बाहर निकल रहा है सोल्यूट एज इट इज़ आता है या कुछ चेंजेस के साथ आता है. विल बी डूइंग इट लेटर, लिटिल लेटर. और लेकिन पहले लेट अस अंडरस्टैंड द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. नाउ सैचुरेटेड तो हो गया, अगर वो उसके बाद और सोल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकता, देन व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? What is supersaturated? A solution which is more saturated than a saturated solution. Fine. More saturated, even more saturated than a saturated one. तो saturated में तो we are saying कि और नहीं solute add हो सकता. Then saturated से भी ज़्यादा saturated कैसे, यानी super saturated solution कैसे बनेगा? So अगर आप saturated solution को heat करते हो, I just now told you कि saturated solution को unsaturated बनाने के लिए either you have to add more solvent to the solution or you can increase the temperature of the solution. So अगर आप saturated solution का temperature increase करते हो, okay, heat करते हो, तो उसमें अभी अब और solute थोड़ा add हो सकता है. अब इसको heat किया तो space हो गई और solute add कर दिया. ऐड करने के बाद अगेन लोअर द टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था. क्लियर है? ठीक से समझो बेटा. जिस एक पर्टिकुलर सपोज रूम टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमने हीट किया, यानी उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया.
अब उसमें और सल्यूट आने की जगह बन गई, सॉल्वेंट अभी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ना, मॉलिक्यूल्स मोशन में आए, तो इसमें और स्पेस बन गया, और सल्यूट ऐड अब कर सकते हैं, है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड करने के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो और सल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उसको हीट किया एंड और सल्यूट उसमें ऐड कर दिया। अब इसका टेम्परेचर जिसमें हमने और ऐड किया है सल्यूट, वो रूम टेम्परेचर से, जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड हुआ था उससे ज़्यादा है। अब बन गया, एक पॉइंट आ गया, अब हीट करने के बाद भी और सल्यूट उसमें नहीं ऐड हो रहा, देन लीव इट, लेट इट कूल एंड कम बैक टू द रूम टेम्परेचर। व्हाट विल हैपन, जितना एक्स्ट्रा सल्यूट उसमें ऐड हुआ था वो एक्सेस अगर बाहर ना आए कूलिंग पे, ठीक है, कूल करने पे, सपोज़ नाइटर ही है, ठीक है, अगर नाइटर को आप हीट करते हो, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ नाइटर को अगर आप हीट करते हो, KNO3 का सैचुरेटेड सोल्यूशन को टेम्परेचर इंक्रीज़ करके और नाइटर उसमें ऐड कर दिया, देन जब वो वापस कूल होकर रूम टेम्परेचर पे आएगा तो एक्सेस नाइटर विल नॉट कम आउट, ओके, दैट सोल्यूशन will be a super saturated solution. Why super saturated? Because जिस टेम्परेचर पे वो अभी कूल होके आया है रूम टेम्परेचर पे, उसमें तो वो बस उतना ही सल्यूट डिज़ोल्व कर सकता था जब वो सैचुरेटेड हो गया था, फाइन। उसमें हमने और सल्यूट, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करके और सल्यूट ऐड किया हमने उसमें, फाइन, तो वो उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे जाके सैचुरेट हुआ, बट हमने उसका टेम्परेचर वापस वो टेम्परेचर पे हम उसे ले आए जहाँ पे ये उससे कम सॉल्यूट उसमें ऐड होने की कैपेबिलिटी थी। तो इस पॉइंट पे जितना इस पॉइंट पे जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता था उतना होके सैचुरेटेड हो गया था, जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता था उससे थियोरेटिकली जितना ऐड हो सकता था उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमने उसको हीट किया और ऐड किया और अब वापस उसको कूल किया, तो जितना हो सकता था उससे ज़्यादा है, तो दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप आई एम क्लियर चिल्ड्रन। जितना सोल्यूशन ऐड हो सकता था सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने उससे ज़्यादा सोल्यूट इस सोल्यूशन को दिया है, फाइन। सो दिस इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, clear? Now let's see what is solubility. What is solubility of the solute? Different substances dissolve to different extents in the same volume of a given solvent. किसी भी एक solvent, जो भी solvent हो, उसी volume में will differ the solutes, fine। अलग अलग solutes सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, सेम टेम्परेचर पे भी सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में अंडर सेम कंडीशंस, अलग अलग सब्सटेंसेस ना अलग अलग एक्सटेंट में डिज़ोल्व होती है। व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक 100 ग्राम वाटर say at 40 degrees centigrade, this is the constant temperature and this is the constant volume of the solvent. This is the given solvent at this particular volume, 100 gram water. इसमें we'll see the different extents of solubilities of two different substances. Say sodium chloride and the other one say KNO3, which we have been looking at right from the starting of the chapter. By nitre or sodium chloride, NaCl की solubility will check. 100 ग्राम वाटर को सैचुरेट करने के लिए we need 36.5 ग्राम ऑफ NaCl. दैट मीन्स 100 ग्राम वाटर में 36.5 ग्राम अगर NaCl ऐड हो तो सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। एंड KNO3, 65 gram of KNO3 can be added to the same volume of water under same temperature and then this solution of water and KNO3 will become saturated. तो किसकी solubility ज़्यादा हुई? Of course इसकी solubility ज़्यादा हुई. More the mass of the solute which can be added in a particular solvent to make that solvent saturated is the solubility of that solute. Fine.
So like this we see the solubility. Now solubility में कुछ terms हैं, बहुत बार आपने सुना होगा the solution is the solute is insoluble, right? Insoluble. You might have somewhere read or heard that the solute is sparingly soluble, है ना? sparingly soluble होता है. एंड एक तो soluble है, दिस इज़ द सिंपल टर्म वी यूज़ फॉर द सब्सटेंसेस और द सल्यूट्स जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक, तो जो कंपोनेंट या जो सल्यूट बिल्कुल भी डिज़ोल्व ना हो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट कहते हैं कि इनसॉल्युबल है. वी कॉल इट कि वो सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, है ना, इनसॉल्युबल है. तो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट कैन बी इनसॉल्युबल. दैट मीन्स कि वो सॉल्यूट बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता. इट कैन बी स्पेरिंगली सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स इनसॉल्युबल नहीं है, इतनी कम भी सॉल्युबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल भी सॉल्युबल ना हो, थोड़ा सॉल्युबल होता है. बट जैसे सॉल्युबल इज़ बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होना, ये जो डिज़ोल्व हो जाना बहुत ज़्यादा उस सॉल्यूट का उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जैसे NaCl का, जैसे शुगर का इन वाटर. स्पेरिंगली सॉल्युबल इससे ज़्यादा एंड इससे कम. इतना ज़्यादा भी आराम से डिज़ोल्व नहीं होता जितना सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं, और इतना कम भी नहीं होता कि बिल्कुल, इन सेंस कि इनसॉल्युबल भी नहीं होता कि बिल्कुल भी सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो, ऐसा भी नहीं होता. तो वो होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल. Now there are some factors which affect the solubility of a particular solute. Fine. जैसे अगर वो solute का particle बहुत ही छोटा हुआ, that is the size of the solute. Okay. Size of the solute particle. अगर ये solute particle जितना ज़्यादा छोटा होगा, solubility उतनी ज़्यादा होगी. Why? Because उस solute का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट, अगर छोटे छोटे, सपोज दिस इज़ द साइज ऑफ द सल्यूट एंड इसी को अगर आप ब्रेक डाउन कर दो इनटू स्मॉलर पार्ट्स, फाइन, इसी को अगर आप ब्रेक डाउन कर दो तो क्या होगा, ज़्यादा इसका सरफेस एरिया सिर्फ ये होगा कॉन्टैक्ट में सॉल्वेंट के साथ. इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो ये इनर सारे पोर्शंस, ये सारा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आ जाएगा उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के, एंड इन दिस केस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. फाइन. तो साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. वन मोर फैक्टर इज़ कि आप कितना ज़्यादा उसको स्टर करते हो. फाइन. कितना विगरसली आप उसको स्टर करते हो, मूव करते हो सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल के. वाई? जितना ज़्यादा स्टर करेंगे सॉल्वेंट उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा सोल्यूट के, एंड देन solubility will increase. One more factor is, and this is a very important factor, the temperature. टेम्परेचर सुनते ही एक दिमाग में आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट नॉट इन द केस ऑफ गैसेस. गैस अगर सॉल्युबल है किसी लिक्विड में, राइट, गैस अगर किसी लिक्विड में सॉल्युबल है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ये तो उड़ जाएगा ना गैस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज़ हो जाएगी. अदर दैन गैस, और अगर किसी सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए उस पूरे सॉल्वेंट का या पूरे सॉल्यूशन का, देन विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी. बट इन द केस ऑफ गैस, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज़. फाइन. ये जो हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन में, ये सपोज सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, तो इट्स नॉट अ केमिकल चेंज बेटा. फाइन. ये कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, दिस इज़ मेयरली अ सॉल्यूशन. इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सपोज ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेते हैं. ये सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं. दैट्स इट. ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, इट्स जस्ट अ फिजिकल चेंज वेयर बाय सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं. नाउ लेट अस डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी. किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी, जैसे वी हैव सीन कि डिफरेंट सॉल्यूट्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो सकती है. सेम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी वैरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस provided. Okay, so how will we calculate solubility? Now how is the solubility determined? For that, first of all, note the temperature of the saturated solution. Take a saturated solution, note its temperature. Fine. देख लो कि किस temperature पे है.
क्योंकि सारा प्रोसीजर हमें उसी टेम्परेचर पे कैरी आउट करना है। एंड वी हैव टू टेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वी हैव सीन कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट लगता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सारा प्रोसेस उसी टेम्परेचर पे करना है। सो नोट डाउन द टेम्परेचर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज वे अ क्लीन ड्राई डिश। जिस डिश में हम वे करने वाले हैं ना सैचुरेटेड सोल्यूशन को, दैट शुड बी क्लीन एंड दैट शुड बी वेरी ड्राई, उसमें कोई वाटर नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो वी डोंट नीड एनी मोर वाटर इन इट। से कि जो वेट हमने लिया उस ड्राई डिश का जिसके ऊपर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को वे करने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल कि उसका वेट है m, ओके, टेक इट एज m, फाइन। नाउ पुट द सैचुरेटेड सोल्यूशन इन इट। जिस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमको वे करना है इस डिश में, हम उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को ले लेते हैं एंड देन अगेन वेट। अब उस डिश में क्या है, खुद डिश का वेट तो m है और सैचुरेटेड सोल्यूशन उसमें डालेंगे तो उसका वेट चेंज होगा, सपोज इट इज m1, फाइन। देन नाउ द फोर्थ स्टेप इज हीट द सोल्यूशन टू ड्राइनेस एंड वे, ठीक है। ये जो सोल्यूशन हमने लिया ना, इसको अब आप हीट करो, तब तक हीट करो जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। दैट मीन्स उसमें जितना वाटर कंटेंट था वो निकल ना जाए, दैट मीन्स कि सॉल्वेंट रिमूव हो जाए, तब तक उसे हीट करो। बिकॉज सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है टू इवेपोरेट, सोल्यूट तो लिक्विड नहीं है, इट इज सॉलिड एंड सॉलिड्स टू नॉट इवेपोरेट। तो उस सोल्यूशन में अगर वील हीट इट टू ड्राइनेस तो क्या होगा, क्या बचेगा इस सोल्यूशन में, सॉल्वेंट रिमूव करके क्या बचेगा, सोल्यूट बचेगा। तो वी टेक द वेट टू बी m2। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन का मास अकेला नहीं है बिकॉज इट इज केप्ट ऑन द डिश। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ द डिश m टू गेट द मास ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन, गेटिंग इट। तो मास ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, ये टोटल वेट जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ साथ डिश भी है, इस टोटल वेट में से हम डिश का अगर मास माइनस कर दें, रिमूव कर दें, दैट इज़ m1 माइनस m, ठीक है। तो ये m1 हो गया सोल्यूट जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन था प्लस डिश, इसमें से अगर माइनस कर दे डिश तो हमारे पास बचेगा सिर्फ सैचुरेटेड सोल्यूशन का वेट। सिमिलरली यहाँ पे वी गॉट द सोल्यूट, लेकिन ये भी डिश के ऊपर है तो ये तो सोल्यूट है, इसमें अब सोल्यूशन नहीं रहा, ये सोल्यूट आ गया, बट ये सोल्यूट किस में है, अगेन इस डिश पे। अगर हमें सिर्फ सोल्यूट का मास चाहिए तो इसमें से डिश का मास हमें हटाना होगा। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ द सोल्यूट, इट इज़ m2 माइनस m, क्लियर है। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट सॉल्वेंट का मास। व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो what is solvent, it is solution minus solute, clear, solution minus solute. Now what is the mass of solution, it is m1 minus m, we'll keep it in bracket, minus what is solvent, solution minus solute. What is solution, m1 minus m. What is solute, m2 minus m, okay, clear है। So m1 minus m, that is the mass of solution, minus m2 minus m, that is the mass of solute, will give us the mass of solvent. Fine. Now what is solubility? Solubility is mass of solute by mass of solvent। कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है, ठीक है, कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट, सॉल्युबिलिटी है ना वो, कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट आ सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमें यहाँ से मिल गया, ये रहा मास ऑफ सोल्यूट एंड ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू 100, दिस इज सॉल्युबिलिटी, फाइन। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी and if we know the mass of solute and we know the mass of solvent, or even if we know the mass of solute and the mass of solution, or the mass of solvent and the mass of solution, so we can calculate
the masses of these two, and then if you multiply the whole thing with 100, you will get the solubility of that particular solute in that given solvent at a particular temperature. Fine. So mass of solute, here it is M2 minus M. So solubility would be M2, it is M2 minus M. This is the mass of solute. Fine. By mass of solvent. Mass of solvent is M1 minus M. M1 minus M is mass of solution minus mass of solute, M2 minus M. We just now calculated the mass of solvent. Fine. So this is M2 minus M, which is mass of solute, divided by mass of solvent into 100. Okay. This is solubility. So in the next part of the same chapter, water chapter, we'll be doing the calculations based on solubility. We'll also be doing the crystals, which I told you we'll study later. So crystal part is left. We'll do the crystal, water of crystallization, and little more part is left. We'll be doing that in the next video. So for that, you need to subscribe to the channel. Hope to see you again. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.